Thank you, TEDx BBIU team, for giving me this opportunity and invite me here as a guest of honor today. I think in my talk, God will be kind. So, Jai Hind, ladies and gentlemen. Some interviews test what you know, but my domain, that is SSB interview, tells you that what you know and what you are. और इसीलिए मेरे लिए ये जो एसएसबी इंटरव्यू का सेगमेंट है, ये सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू नहीं है, ये मनसा, वाचा और कर्मणा का रियल टेस्ट होता है. देयर मस्ट बी द क्लियर अलाइनमेंट बिटवीन योर माइंड, योर स्पीच एंड योर एक्शन. आई एम शिशिर दीक्षित. I am psychology by profession, a forces veteran, and for more than a decade, I have dedicated my life to working with young boys and girls and mentoring them for the meaningful profession that they want to earn, right to serve selflessly. That is सेवा परमो धर्मा. एक ऐसी नौकरी, एक जो नौकरी नहीं है, जो सेवा है, आर्म फोर्सेस में जाना और वर्दी पहन के सरहद पे अपने देश के लिए कुछ करना. At Centurion Defense Academy, as a chief SSB interview mentor and chairman, I, along with my passionate professionals, have had the privilege of mentoring aspirants who went on to become 750 plus armed forces officers. They are currently serving or undergoing their rigorous training, including All India Rank 1, 2, and 3, and many other top rankers across the NDA, CDS, AFCAT, Military Nursing Service, and SSB interview consistently over the years. On some weeks, that journey translates into one officer within every 36 to 42 hours that I and my team is producing. But honestly, the number is not the most important part. The real story is what those selections have taught me. I have seen candidates from metros, from small villages. I have also seen Hindi medium aspirants. I have also seen fluent English speakers. I have seen toppers fail, and I have also seen that average candidate rise. And I have also seen that quiet candidates become powerful leaders. And I have also seen that one of my students, namely Lieutenant Shashank Tiwari, who hailed from Ayodhya, Uttar Pradesh, who selflessly laid down his life in the line of duty and was posthumously awarded as a gallantry award, namely Kirti Chakra. And I still remember listening to the lines of my headphones, चौखट के दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, and I could not hold back my tears. And at that moment, I realized that something deeper than selection, that this is not mere a selection process, it is more than it. This journey is not just about clearing an interview. This is about becoming the kind of person you is ready to give everything when nations calls. And SSB is not merely observing performance. I've seen one pattern again and again. It is observing officer-like potential, and it aspects authenticity, because every individual's journey is unique and cannot be replicated. It is a testing what happens when you are under pressure. What happens when the group is confused? जब आप किसी टीम को लीड कर रहे हो और आपका ग्रुप कंफ्यूज है. What happens when the task becomes difficult? हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है, because problems are part of life. The way we solve problem is art of life. And what happens when your ego and the mission जिसके लिए आप काम करते हैं, that collide? So this morning, I do not want to talk only about how to clear an interview. I want to talk about what actually makes a person look like officer. Because
If I had to compress years of my mentoring into one line, it would be this: the toughest interview does not select the most polished candidate. It selects the most officer like trainee, not a perfect officer. And in my experience, there are four core parameters that I would say secret parameter that appear again and again in the recommended candidate. अगर आपको आर्म फोर्सेस, जिसको टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ दिस अर्थ बोला जाता है, अगर उस इंटरव्यू में क्वालिफाई करना है तो ये चार ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने मोर देन अ डिकेड के पूरे एक्सपीरियंस में देखा कॉमन है. एंड not only these four traits are important if you want to clear an interview, but also if you want to grow as a leader, this as an institutional leadership, these four important qualities you must possess. So number one is fighting spirit. Number one is fighting spirit. Fighting spirit मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लीडर से क्या चाहता है. Every organization is looking for that fighting spirit. And fighting for what? Fighting for that mission first fighting spirit. Are you having goal clarity? जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा है, पार्ट हैं, डू यू हैव दिस अवेयरनेस कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका विजन क्या है, उसका गोल क्या है. ये क्लैरिटी अगर आपके अंदर है तो रिमेंबर देयर इज अ अंडररेटेड लाइन. हम सभी बोलते हैं साम दाम दंड भेद. हम सभी ने अभी धुरंधर मूवी देखी होगी. आप में से काफी लोगों ने देखी होगी धुरंधर मूवी, और उसमें भी जो दिखाया गया है वो आर्म फोर्सेस की लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया. सो व्हेन दिस इज अंडररेटेड लाइन साम दाम दंड भेद, हम बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं इस लाइन को, बट आर्म फोर्सेस सिखाती है इस लाइन का असली मतलब. इस लाइन का मतलब है when you are heading towards a mission, then how is your persuasive skill, how is your convincing, negotiation, counseling power, how you deal your people, your men, your team that you are commanding. And goal must be clear. एयर फोर्स की टैगलाइन ये हमें सिखाती है पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज. बट मतलब ये कि मिशन हैज हाईएस्ट प्रियोरिटी. जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसका जो मिशन है, that accomplishment of the mission has highest priority. So do you have that fighting spirit? If you have fighting spirit, remember armed forces are searching for you irrespective of your background, your caste, your creed, your gender. Are you a genuine fighter? If you are a genuine fighter, remember every organization is searching for you. And sam dam dand bhed, armed forces क्या सिखाती है? Sam means समझा के, परसुएसिव स्किल से अपने काम को करना. दाम मीन्स गिविंग रिवॉर्ड्स टू योर टीम, और ग्रेटिट्यूड, और बी थैंकफुल टू योर टीम, और गिव क्रेडिट टू योर टीम. दाम उसको लगे कि यार नहीं, मेरा लीडर मेरे लिए साथ खड़ा है एंड ही इज एक्नॉलेजिंग माई एफर्ट्स. दैट इज दाम. दंड मीन्स आर्म फोर्सेस की ग्रेविटी ऑफ मिशन इतना इंपॉर्टेंट है वेयर यू कैन नॉट से सॉरी. So if your mission is compromised, then you may use dand also forcefully, because mission accomplishment has highest priority. And last is जो धुरंधर मूवी में हमने देखा, that is भेद. If required, using intelligence methods, we have to accomplish the mission. So this is the first point, is fighting spirit. Every organization, every institutional leadership is looking for फाइटिंग स्पिरिट इन यू. आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, एक लीडरशिप डोमेन पे अपिक लेवल पे जाना चाहते हैं, लाइफ में वर्टिकली ग्रो करना चाहते हैं, फाइटिंग स्पिरिट इज रिक्वायर्ड, हाईली रिक्वायर्ड. एंड नेक्स्ट इज नंबर 2 इज बीइंग सोशल. अगेन इसको बहुत ही कैजुअली हम लेते हैं, बीइंग सोशल. आर यू अ जेन्युइन सोशल? जब हम इंटरव्यूज करते हैं तो सारी बातें पता चल जाती हैं. व्हेन वी आस्क टेल मी हॉबीज, इंटरेस्ट, टेल मी समथिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, we are not looking for you to be important for yourself, rather we are expecting you to be valuable for your team members. Are you a genuine social person in life? क्या आपके 4 दोस्त बनते हैं? Are you comfortable in group? क्योंकि बड़े मिशन हमेशा टीम से अकॉम्प्लिश होते हैं.
Remember, team effort makes the dream effort. So being social is highly required. और हम सभी लाइफ में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा. हमारी टीम स्पिरिट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, सोशल टैक्ट, सोशल इंटेलिजेंट, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इनको लाइफ में जरूर आत्मसात करना चाहिए. थर्ड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो है लाइवलीनेस. अपने रिकॉल करिए, आपने किसी लीडर को देखा हो, अपनी टीम के लीडर को, अपने किसी सीनियर को देखा हो जिसने किसी मिशन को लीड किया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड कर रहा है. सक्सेसफुल वो तभी होगा जब उसके अंदर लाइवलीनेस है. लाइवलीनेस मतलब हाउ यू कीप योर एनवायरमेंट लाइट. आप अपनी टीम के साथ जब हाउ यू नो दैट एसेंस एंड हाउ टू सॉल्व मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द इजीएस्ट वे. तो दिस इज लाइवलीनेस. क्या आपकी वजह से आपकी टीम बोर तो नहीं होती? कैन यू क्रैक अ जोक? इफ आई आस्क फ्रॉम द ऑडियंस that how many of you can crack a joke right now? So many of you may not be able to crack a joke. So this is also important as a leader. जब आप टीम का हिस्सा होते हैं तो टीम को बोरिंग लीडर नहीं चाहिए. It is less trainable trait. You know, over decades we have also realized कि कुछ जिंदा दिली होते हैं बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं they are over serious. क्योंकि हमारे, ये मैं नहीं जानता कि ये हमारी गलती, मुझे लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बताया गया कि हमें पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. ड्यू टू विच हम अगर छोटे थे तो हमारे घरों में बोला जाता है नहीं सीरियस रहना है. बट रिमेंबर, ओवर सीरियसनेस इज हार्मफुल. हमें लाइवलीनेस एक लीडर का इसेंशियल ट्रेट है जो लेस ट्रेनेबल है. एंड माय फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द डे इज एडेप्टिव ट्रेनेबिलिटी. रिमेंबर, आर्म फोर्सेस आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्ट पर्सन. Whenever जब आपका इंटरव्यू होता है तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्ट कैंडिडेट. रेदर ऑर्गेनाइजेशन लुक्स फॉर यू, आर यू ओपन फॉर ट्रेनेबिलिटी, आर यू ओपन टू लर्न, डू यू हैव इंक्विजिटिव नेचर. क्या आप लाइफ में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? आर यू नॉट अ रिजिड पर्सन? और आप देख रहे हैं नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर में, आप देख रहे हैं एआई के इस सिनेरियो में इक्विपमेंट्स, सुपर कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस जिसकी हम सभी बात करते हैं और हम सभी फक्र करते हैं कि हम ह्यूमन का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, कमबख्त वो भी आर्टिफिशियल हो गया. एंड एआई के सिनेरियो में रिमेंबर अगेन एंड अगेन वी हैव टू बी एडेप्टिव और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है. नेवर से दैट आई एम परफेक्ट पर्सन. एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, सालों के अनुभव के बाद भी जब हम क्लास में जाते हैं तो अपने आप को अपडेट करके जाते हैं, रीसेंट कंटेंट को अपडेट करते हैं, अपनी पीपीटी को अपडेट करते हैं. तो नेवर से दैट आई एम अकॉम्प्लिश्ड पर्सन इन लाइफ, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट लुकिंग फॉर अकॉम्प्लिश्ड पर्सन. आर्म फोर्सेस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए? वो ये चाहते हैं कि आर यू रेडी टू लर्न एंड अडेप्ट द न्यू एनवायरमेंट. These are not just real selection parameters for interview. These are foundations of leadership. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और वर्टिकली ग्रो करना चाहते हैं, रिमेंबर आपके परसेंटेज, आपकी डिग्री आपको आगे लेके जाएगी. लेकिन लीडरशिप एक ऐसी बात है जो लाइफ में आपको वर्टिकली मैसिव आप सरप्राइज आपको लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको मैसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस करना है. तो लीडरशिप वर्ड को याद रखना और उसको पहचानने की कोशिश करना. एंड इट इज ट्रेनेबल. लीडरशिप इज नथिंग, इट इज इन्फ्लुएंस. इन द एंड यू डोंट बिकम एन ऑफिसर बाय क्लियरिंग एन इंटरव्यू. यू क्लियर द टफेस्ट इंटरव्यू बिकॉज यू ऑलरेडी थिंक लाइक एन ऑफिसर. यूनिफॉर्म पहले शोल्डर्स पर नहीं आती है, पहले कैरेक्टर में आती है आपके. एंड यूनिफॉर्म जब आप आर्म फोर्सेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन की यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप सोचिए वहां पे सॉरी एफोर्ड नहीं किया जा सकता. तो थिंक लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड इन अ नटशेल, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ रोल ऑफ अ मदर इन अ फैमिली? हैव यू ट्रूली अंडरस्टूड हर सेंस ऑफ सर्विस? अ मदर डज नॉट लीड बाय अथॉरिटी. हमारे घरों में सी लीड्स
by responsibility, care, and silent strength. She shapes individuals. She creates future assets in family. And eventually, she also saves the entire family. Similarly, a true leader is not defined only in armed forces. Every organization looks for leader with that same sense of responsibility. A responsible leader can take care of his team just like an officer takes care of his men. And when the moment of crisis arrives, he rises above himself and answers the call of duty. आर्म फोर्सेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क मैनेजर नहीं चाहिए, क्राइसिस मैनेजर चाहिए. बिकॉज रियल लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट सर्विस. सेवा परमो धर्मा. एंड with that spirit of servant leadership, the true leader does not just succeed in an interview, he succeeds in life. Thank you. Jai Hind.